Hello student, today we will discuss on another lecture of the trigonometry. This will be the sixth lecture of the trigonometry. In the last lecture we have seen the concept of a unit circle and the simplification of the trigonometric terms with the pi. Now the same kind of topic we will talk about, but that topic will of a unit circle that will be utilized with the pi by 2, with the use of a pi by 2. Now for this one, this has been the unit circle, x-axis, y-axis. Now for this unit circle, this will be a point A, this will be a point B, this will be a point C, or you can say the which one A dash we are talking. So this will be a dash and this will be a B dash. Last time around we have talked about the first quadrant using the which one point A. Now अब ये पूरा पोर्शन हम यूटिलाइज करेंगे by using the point B and a B dash. B पे कौन सा एंगल आता है? So normal angle at a point B will be pi by 2. At B dash it will be 3 pi by 2. ये तो पता है यहाँ पे क्या होता है 0 से आगे जाओ pi by 2 then a pi then a 3 pi by 2. पूरा यूनिट सर्कल कंप्लीट करो then it will be a which one 2 pi. So on. फर्दर अब यहाँ पे जाए pi by 2 के बाद रिवर्स ऑर्डर में जाए clockwise. So 0 से clockwise this will be minus 90. So minus pi by 2 then a minus pi. Then here you will get minus 3 pi by 2. So on we can move clockwise. Last time बात की थी anti-clockwise angle will be increased, clockwise angle will be decreasing. Now what you have to remember is first quadrant this we will use the which one B. तो B से यानी कि pi by 2 से you have to move clockwise. Clockwise जाओ तो एंगल सबट्रैक्ट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इट विल बी पाई बाय 2 माइनस थीटा. क्लियर अबाउट इट. अब यहाँ पे सिर्फ पाई बाय 2 नहीं लिख सकते, इन जनरल लिखना हो तो वी कैन राइट डाउन एज द व्हिच वन 4k प्लस 1 इनटू पाई बाय 2, यानी कि पाई बाय 2 देन व्हिच वन 5 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2. जितने भी पाई बाय 2 पॉइंट बी पे आ रहे हैं वो सारे पाई बाय 2 माइनस थीटा विल बी द फर्स्ट क्वाड्रेंट और वही पाई बाय 2 प्लस थीटा करो क्योंकि पाई बाय 2 से एंटी क्लॉकवाइज जाओ. सो पाई बाय 2 प्लस थीटा विल बी द सेकंड क्वाड्रेंट. Similarly, the third quadrant it will be connected with the point which one 3 pi by 2. So here it will be what you will get 3 pi by 2 say anti-clockwise. So it's a 3 pi by 2 plus theta. Here it will be a which one 3 pi by 2 minus theta क्योंकि 3 pi by 2 से we are moving towards the clockwise angle will be subtracted. Clear about it. अब यहाँ पे जैसे लास्ट टाइम अराउंड ये फॉर्मूलाज देखी थी, सेम वे फॉर्मूला वी विल सी हियर. सो हियर व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट इट विल बी लाइक दिस वन. क्या लिखेंगे हम? पाई बाय 2 माइनस थीटा. क्लियर. अब यहां पे फॉर्मूलाज देखनी हो तो फर्स्ट फॉर्मूला साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा. सो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा विल बी अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव, ये तो पता है. तो यहां पे आंसर सारे पॉजिटिव आएंगे. बट एट पाई बाय 2 फंक्शंस विल बी चेंज. ये फॉर्मूला 10th स्टैंडर्ड की है. 10th स्टैंडर्ड में आपने देखा था साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा पाई बाय 2 यानी कि 90 डिग्री हुई है. तो 90 माइनस थीटा या पाई बाय 2 माइनस थीटा. पाई बाय 2 पे फंक्शन विल बी चेंज. So sine will be converted to the which one cos theta. Sine will be converted to the which one cos theta. Similarly cos 90 minus theta pi by 2 minus theta हो तो pi by 2 पे फंक्शन चेंज. So cos will be converted to the which one sine.
so it will be a sin theta. Similarly, tan 90 minus theta, so tan pi by 2 minus theta, function change हो जाएगा, so it will be equal to cot theta. Similarly, the cot 90 minus theta, function change, so tan convert to cot, cot convert to tan, sin converts to cos, cos convert to sin. Similarly, the which one, sec and a cosec. So sec 90 minus theta will be a, what you will get, cosec theta. And the last one, that is the which one, cosec 90 minus theta will be equals to what you will get, sec theta. यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट एवरी ट्रिगोटम वाज द व्हिच वन, पॉजिटिव, तो सारे आंसर क्या है, पॉजिटिव आए, बट एट पाई बाय 2 फंक्शन चेंज। लास्ट टाइम हमने जो देखा था ना, वहां पे हमने कौन से पॉइंट्स यूज किए थे, ए और ए डैश। ए और ए डैश पे क्या आता है, पाई, ऑड पाई, इवन पाई, ए डैश ऑड पाई, ए इवन पाई। इवन पाई या ऑड पाई से आप अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो इस सिम्टम्स को, तो यहां पे कंपल्सरी फंक्शन वही रहता है, सिर्फ अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट प्लस माइनस चेंज होता है। बट अगर वही चीज पाई की जगह पाई बाय 2 यूज हो, तो हर पाई बाय 2 पे फंक्शन चेंज होता है, एंड एवरी पाई बाय 2 फंक्शन विल बी चेंजेस फ्रॉम द साइन टू कॉस, cos to sin, tan to cot, cot to tan. Similarly, sec to the cosec and a cosec to the sec. That way the function will be changes. Clear about it? उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट के लिए अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, we will talk about the which one, second quadrant। अगर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए बात कर रहे हो तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए इन जनरल फॉर्मेट क्या होगा, पाई बाय 2 plus theta, and second quadrant we can say s यानी कि sin and a cosec will be positive, all other will be the which one, negative। sin cosec positive, बाकी सारे क्या होंगे, negative। So for here second quadrant what we have to talk about, sin pi by 2 plus theta, तो पाई बाय 2 पे फंक्शन चेंज, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, सो दिस विल गिव यू द व्हिच वन, कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, सो कॉस विल बी कन्वर्टेड टू द साइन, सो इट विल बी माइनस साइन थीटा। अब यहां पे देखो प्लस माइनस कहां पे आया, तो जो ओरिजिनल फंक्शन की साइन होगी ना वो आंसर में दिखेगी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो आंसर में क्या आया, प्लस कॉस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो आंसर में क्या आया, माइनस साइन थीटा। यानी कि प्लस माइनस किसका लिखने का, ओरिजिनल फंक्शन का। ओरिजिनल फंक्शन साइन अगर उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ओरिजिनल फंक्शन अगर कॉस हो, अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो आंसर माइनस साइन थीटा आएगा। आंसर विल बी द व्हिच वन, माइनस साइन थीटा। क्लियर? देन आफ्टर कॉस के बाद वी हैव टू टॉक अबाउट द व्हिच वन, tan पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो अगेन पाई बाय 2 प्लस second quadrant tan will be negative, so answer will be a which one, minus cot theta। answer will be the which one, minus cot theta। clear about it? सारे पाई बाय 2 पे फंक्शन चेंज। क्लियर? पहली बात, at every pi by 2 function will be changed, and second one that you have to remember is that जो भी आपको ये प्लस माइनस बाहर लिखनी है ना, प्लस थीटा हो या माइनस थीटा, थीटा तो प्लस ही आएगा, बट बाहर का जो प्लस माइनस है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जैसे आप लिखते थे ऑल एसटीसी के अकॉर्डिंग, तो वो साइन ओरिजिनल फंक्शन की आएगी। जो नया फंक्शन आया है उसकी प्लस माइनस साइन नहीं देखनी है, उसका क्वाड्रेंट नहीं देखना है। क्वाड्रेंट किसके लिए, ओरिजिनल फंक्शन का जो साइन हो वही।
जैसे यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव था तो आंसर माइनस साइन थीटा आया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव था तो आंसर प्लस कॉस थीटा आया। ये ओरिजिनल फंक्शन की जो साइन होगी वही यहाँ पे आंसर में दिखेगा। क्लियर अबाउट इट? तो इसके अकॉर्डिंग बाकी के 3 आपको लिखने हैं, दैट विल बी सेक, कॉसेक एंड कॉट। तो इसके बाद आई एम टॉकिंग अबाउट विच वन, थर्ड क्वाड्रेंट। किसके लिए बात करूंगा मैं? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एंगल कौन सा होगा? सो द फॉर द थर्ड क्वाड्रेंट वो बीडस के एंगल यानी कि 3π/2 से कनेक्ट होगा, उससे क्लॉकवाइज जा रहे हो तो 3π/2 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan and cot positive, all other will be negative. So first of all, sin 3π/2 minus theta. So third quadrant sin will be negative. So answer will be minus cos theta. Clear? Sin थर्ड में नेगेटिव है तो आंसर माइनस आया। Similarly, cos 3π/2 minus theta. Again third quadrant cos negative, the answer will be minus sin theta. Similarly, जब उसके बाद tan के लिए बात करो तो tan 3π/2 minus theta, तो tan will be positive, तो answer will be plus cot theta. Clear? चलो लिख लो यहां तक, just write up. Okay, now in the fourth quadrant we will talk about fourth quadrant में angle will be 3π/2 plus theta, and the fourth quadrant what would be positive and what would be the negative? So in the fourth quadrant cos and sec will be the positive, all other will be negative. Cos sec positive, बाकी सारे negative. तो अब यहां पे पहले टर्म के लिए बात करते हैं, साइन एंगल कौन सा होगा? बीडस पर का कोई भी एंगल। मैं 3π/2 सिर्फ एक ले रहा हूं, पर सिर्फ 3π/2 नहीं, आप -π/2 भी ले सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे π/2 की जगह -3π/2 भी आ सकता है। सिमिलरली यहाँ पे π/2 की जगह 5π/2 भी आ सकता है। जो भी बी के एंगल है वो सारे एंगल यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट बी माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट बी पर का कोई भी एंगल प्लस थीटा। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट बी डैश माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट आप बी डैश पर का कोई भी एंगल प्लस थीटा ले सकते हैं। अब यहां पे साइन 3π/2 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें किसकी साइन देखने की? प्लस माइनस हम देखेंगे साइन का। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए बाहर आएगा माइनस, और फिर π/2 पे फंक्शन चेंज तो cos थीटा। ये जो आंसर का जो फंक्शन आया उसकी साइन यहां पे नहीं लगेगी। साइन किसकी लगेगी? प्लस माइनस किसका देखना होगा? दैट इज ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। ओरिजिनल फंक्शन उस क्वाड्रेंट में प्लस हो तो प्लस लेना है, ओरिजिनल फंक्शन उस क्वाड्रेंट में माइनस हो तो माइनस लेना है। क्लियर? उसके बाद साइन के बाद नेक्स्ट वन दैट वी विल टॉक अबाउट, दैट इज द व्हिच वन? cos 3π/2 प्लस थीटा। ओके, cos यहां पे पॉजिटिव होता है, सो यहां पे आंसर में इट विल बी द व्हिच वन? प्लस साइन थीटा। π/2 कोई भी π/2 हो, π/2, 3π/2, 5π/2, एंड एवरी π/2 फंक्शन विल बी चेंजेस। क्लियर? और प्लस माइनस हर बार ओरिजिनल फंक्शन का। फोर्थ में साइन वाज व्हाट? नेगेटिव, तो बाहर माइनस आया। कॉस पॉजिटिव तो बाहर प्लस आया। फंक्शन चेंज होके नया जो फंक्शन आया है वो नए फंक्शन की साइन नहीं लेनी है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन में जो फंक्शन है उसकी ही साइन डालनी है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट वन दैट वी विल टॉक अबाउट, दैट इज द व्हिच वन? tan
3 pi by 2 plus theta, tan negative, तो it will be minus cot theta. उसके बाद sec cosec के लिए बात कर लेते हैं, cot के लिए बात कर लेते हैं. तो sec फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो sec 3 pi by 2 plus theta will be equals to what you will get plus cosec theta. सिमिलरली अगर cosec के लिए बात करें तो cosec 3 pi by 2 plus theta, that will be which one minus sec theta. लास्ट में किसके लिए बात करेंगे? We will talk about the which one cot 3 pi by 2 plus theta will be minus tan theta. यहाँ के बाकी के अपने आप लिख सकते हो. सो मेनली याद क्या रखना है, यही चीज लास्ट लेक्चर में हमने by using the angles or the points of A और A dash यूज किया था. इस चैप्टर यहाँ पे हम जो पॉइंट ले रहे हैं वो कौन से पॉइंट ले रहे हैं? B और B dash. B और B dash पे सारे एंगल कौन से फॉर्मेट में आएंगे? पाई बाय 2 फॉर्मेट में. और एट एवरी पाई बाय 2 फंक्शन विल बी चेंज. फिर से बोला, एट एवरी पाई बाय 2 फंक्शन विल बी चेंज. क्लियर? और प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग यानी कि कौन सा मेथड यूज करना है? ऑल एस टी सी. फर्स्ट ऑल, सेकंड एस, थर्ड टेन एंड कॉट पॉजिटिव टी, फोर्थ सी, कॉस एंड सेक पॉजिटिव. ऑल एस टी सी सी याद रखना है और उसके अकॉर्डिंग ओरिजिनल फंक्शन की जो प्लस माइनस साइन है वो आपको लिखनी है. क्लियर? तो ये फोर्थ वाला लिख दो. इसके बाद सम्स देखते हैं. चलो evaluate the values है. First question that we have to see that has been like this one. Sin pi by 2 minus theta into cos 3 pi by 2 minus theta into tan 2 pi minus theta divided by cos pi by 2 plus theta into sin 2 pi minus theta into cot 3 pi by 2 plus theta. ये इतने टर्म्स दिए गए, इसको सिंप्लीफाइड करके यू हैव टू ऑब्टेन द आंसर. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली टर्म कौन सी है? साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा. पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा? मेनली अब यूनिट सर्कल आपके माइंड में फिट हो जाना चाहिए. यहाँ पे पाई बाय 2, यहाँ पे 0, या तो यहाँ पे सारे इवन नंबर इनटू पाई, यहाँ पे सारे कौन से आएंगे? ऑड नंबर इनटू द विच वन? पाई. सो यहाँ पे पाई 3 पाई ऐसे टर्म्स. यहाँ पे 3 पाई बाय 2 या तो माइनस पाई बाय 2 ले सकते हो. सिमिलरली यहाँ पे 5 पाई बाय 2 भी ले सकते हो. यहाँ पे व्हाट यू कैन टेक इट माइनस 3 पाई बाय 2 कोई भी ले सकते हो. तो सबसे पहले पाई बाय 2 माइनस थीटा का पाई बाय 2 यहाँ पे ऊपर आएगा. माइनस यानी कि उससे कौन सी साइड जाने का? क्लॉकवाइज. तो ये पॉइंट है, उससे क्लॉकवाइज जाओ. कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फर्स्ट. Everything will be positive. Everything will be positive. So that's why it will be plus pi by 2 पे function change. So it will be converted to the which one? Cos theta. वो क्या हो जाएगा? Cos theta into cos 3 pi by 2 minus theta. 3 pi by 2 यहाँ पे आया,
माइनस यानी कि यहां से क्लॉकवाइज, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट, कॉस विल बी नेगेटिव, फंक्शन चेंज पाई बाय 2 पे, सो इट विल बी माइनस साइन थीटा। वो क्या होगा, माइनस साइन थीटा। अब यहां पे देखो क्या है, 2 पाई यानी कि इवन पाई हुआ, तो वो आएगा यहां पे, पाई बाय 2 नहीं है तो यहां पे नहीं जाएगा, इवन पाई यहां पे आया, माइनस थीटा यानी कि यहां से क्लॉकवाइज, तो इवन पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, tan नेगेटिव, बट पाई बाय 2 पे फंक्शन चेंज नहीं, तो इट विल बी माइनस tan थीटा, दैट विल गिव यू द व्हिच वन, माइनस tan थीटा। क्लियर? उससे आगे जाओ, cos पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो यहां पे पाई बाय 2 यहां पे आया, प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा यानी कि इट विल बी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो कि सेकंड क्वाड्रेंट cos विल बी नेगेटिव, ओरिजिनल फंक्शन की साइन, पाई बाय 2 पे फंक्शन चेंज होकर आंसर साइन आएगा, बट ओरिजिनल फंक्शन cos वहां पे नेगेटिव था, तो आंसर आएगा माइनस साइन थीटा। क्लियर? नेक्स्ट वन, साइन 2 पाई माइनस थीटा, साइन 2 पाई यानी कि इवन पाई, माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन विल बी नेगेटिव, बट पाई पे फंक्शन चेंज नहीं, इसलिए वहां पे साइन ही आएगा, और वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो इट विल बी माइनस साइन थीटा। क्लियर? 3 पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 2 यहां पे प्लस थीटा, दैट विल बी द फोर्थ क्वाड्रेंट अगेन, तो फोर्थ क्वाड्रेंट cot नेगेटिव, बट पाई बाय 2 पे फंक्शन चेंज, सो इट विल बी माइनस tan थीटा, तो tan थीटा गॉन, साइन एंड साइन गॉन, ये माइनस माइनस कट, ये माइनस माइनस कट, तो cos अपॉन माइनस साइन थीटा will be equals to what you will get, minus cot theta. That will be the answer. Clear? Same way, one more question that we have to see. इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, that is sin pi by 2 plus theta into sec 3 pi by 2 minus theta into tan 3 pi माइनस थीटा प्लस यहां पे cos 2 पाई माइनस थीटा इंटू cosec पाई प्लस थीटा, क्लियर, इंटू cot पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये दिया हुआ है। क्लियर? सो नाउ हियर व्हाट वुड बी द आंसर? सो हियर इट विल बी लाइक दिस वन, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा, दैट विल बी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट साइन विल बी नेगेटिव पॉजिटिव, तो आंसर प्लस में आएगा, बट पाई बाय 2 पे फंक्शन चेंज, अभी भी रिपीट कर रहा हूं, यहां पे पाई बाय 2 और पाई दोनों में कंबाइन ले रहा हूं, पाई बाय 2 वाले पे हर बार फंक्शन चेंज होगा, पाई वाले में कहीं पे भी फंक्शन चेंज नहीं, फंक्शन रिमेन्स एज इट इज, सो पाई बाय 2 फंक्शन चेंज, साइन किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस में, एवरी पाई बाय 2 फंक्शन चेंज। नाउ 3 पाई बाय 2 यहां पे माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, sec will be negative, तो माइनस, again in that quadrant sec will be a which one, negative, so it will be minus cosec theta, minus cosec, क्यों, पाई बाय 2 पे फंक्शन चेंज, थर्ड में sec नेगेटिव, तो माइनस cosec थीटा, tan 3 पाई माइनस थीटा, 3 पाई और पाई हुआ, यहां पे आएगा, पाई के पास ही 3 पाई आएगा, माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, tan नेगेटिव, बट पाई पे फंक्शन चेंज नहीं, सो इट विल बी माइनस tan थीटा। क्लियर? cos 2 पाई माइनस थीटा, चलो cos 2 पाई यानी कि इवन पाई माइनस थीटा, दैट विल बी द व्हिच वन, फोर्थ क्वाड्रेंट,
फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस विल बी व्हाट पॉजिटिव, तो वो प्लस ही रहेगा और पाई पे फंक्शन चेंज नहीं, सो इट विल बी प्लस कॉस थीटा, cosec पाई प्लस थीटा, पाई और पाई प्लस थीटा. थर्ड क्वाड्रेंट cosec विल बी नेगेटिव, so it will be minus cosec, पाई पे फंक्शन चेंज नहीं, माइनस cosec थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट एवरीथिंग पॉजिटिव, but pi by 2 पे फंक्शन चेंज, so cot will be converted to the which one tan theta. So ultimately ये माइनस माइनस प्लस हुआ, so it will be cos theta into what you will get cosec theta into what you will get tan theta. ये आपका पार्ट प्लस माइनस, तो माइनस cos theta into what you will get cosec theta into tan theta. दोनों सेम टर्म, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सब्ट्रैक्शन विल बिकम जीरो. क्लियर? चलो थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरह है, इसके बहुत सारे सब पार्ट है. दैट इज फॉर ट्रायंगल एबीसी. किसके लिए बात करेंगे? फॉर ट्रायंगल एबीसी. फॉर ट्रायंगल एबीसी ये सारे प्रूव्ड है. फर्स्ट वन, prove that sin b plus c by 2 is equal to cos a by 2 is equal to, क्या प्रूव करना है आपको? cos a by 2 प्रूव करना है. क्लियर? तो ये प्रूव करने के लिए ये बात किसके लिए हम बात कर रहे हैं? ट्रायंगल एबीसी. ट्रायंगल एबीसी के लिए क्या रूल होगा? सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑलवेज बी इक्वल टू 180. 180 यानी कि पाई. तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई हुआ. अब यहां पे b प्लस सी चाहिए, तो b प्लस सी को सब्जेक्ट बनाओ, तो b प्लस सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? पाई माइनस a. अब प्रूव दैट के LHS से सम स्टार्ट करो. LHS साइन b प्लस सी बाय 2. सो b प्लस सी की जगह वैल्यू डालो, साइन b प्लस सी पाई माइनस ए डिवाइड बाय 2 होगा. अब डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेट दो, सो इट विल बी साइन पाई बाय 2 माइनस ए बाय 2 होगा. तो पहले आया पाई बाय 2, यहां पे माइनस यानी कि क्लॉकवाइज. कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एवरीथिंग पॉजिटिव, बट साइन पाई बाय 2 पे फंक्शन चेंज, सो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस, और थीटा की जगह यहां पे a बाय 2 है, तो थीटा की जगह हम लिखेंगे a बाय 2. सो इट विल बी cos a बाय 2 विच इज अवर रिक्वायर्ड RHS. क्लियर? सो मेनली याद यही रखना है, पाई पे फंक्शन चेंज नहीं. एट एवरी पाई बाय 2 फंक्शन विल बी चेंजेस. क्लियर? सारे पाई बाय 2 पे फंक्शन चेंज, पाई पे फंक्शन चेंज नहीं. प्लस माइनस जो ओरिजिनल फंक्शन है उसकी ही साइन लिखने की, पाई हो या पाई बाय 2 हो. क्लियर? इज देयर एनी प्रॉब्लम? और वो प्लस माइनस किसके अकॉर्डिंग आएगा? तो प्लस माइनस विल ऑलवेज बी अकॉर्डिंग टू द विच वन? ऑल STC. लिख लो. फर्स्ट देखा. नाउ द सेकंड क्वेश्चन थर्ड में ही है, यानी कि फॉर ट्रायंगल एबीसी दिया ही हुआ है. सेकंड वन इट हैज बीन गिवन दिस वन. प्रूव दैट tan b plus c
is equal to minus tan A. Clear? So again, method will be the which one? Same. क्या होगा? Sum of all three angle of a triangle यानी कि A plus B plus C is equal to pi. From that B plus C चाहिए तो B plus C is equal to क्या लिख सकते हो? प्लस से सामने गया माइनस हुआ, सो B plus C will be equals to what? पाई माइनस A. चलो स्टार्ट करें यहाँ पे क्वेश्चन. What has been your LHS? LHS क्या है यहाँ पे? tan B plus C. क्या है? tan B plus C. So it will be equals to tan B plus C will be replaced by pi minus A. पाई यानी कि और पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, एस यानी कि साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, तो ये माइनस आएगा. सो इट्स अ माइनस tan A which is your required RHS. Now the third one that we have to talk about, that has been obtained the way what value evaluate है. That is sin B plus C into cos B plus C into sin A by 2 into cos A by 2 plus sin B plus C by 2 into cos B plus C by 2 into sin A into cos A. इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है. तो हर बार जब भी ट्रायंगल एबीसी दिखे ना, उसमें कहीं पे भी आपको सम ऑफ द टू एंगल्स मिले, ऑलवेज रिप्लेस सम ऑफ द टू एंगल्स एज द पाई माइनस थर्ड. B plus C दिखा तो B plus C will be replaced by which one? पाई माइनस A. तो पूरे क्वेश्चन में जहां पे भी आपको B plus C दिख रहा है ना, वो सारे B plus C को कन्वर्ट कर दो इसमें पाई माइनस A into cos B plus C दिखा, replace it by the pi minus A into sin A by 2 into cos A by 2 replace किया plus sin B plus C by 2 आया तो B plus C will be replaced by pi minus A divided by 2 as it is. Again B plus C दिखा, replace it by the pi minus A divided by 2 into sin A into cos A. Clear about this one? तो चलो sin pi minus theta और पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, सो इट्स अ साइन ए. कॉस पाई माइनस ए और पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस कॉस ए. ये जो a by 2 वाले टर्म है वो दोनों टर्म में एज इट इज रख रहा हूं, साइन a by 2 कॉस a by 2 प्लस साइन पाई माइनस a by 2 हुआ तो पाई माइनस ए बाई 2 में डिनोमिनेटर सेपरेट दो, पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 इंटू कॉस पाई माइनस ए बाई 2 डिनोमिनेटर सेपरेट दो, पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 इंटू साइन ए इंटू क्या कॉस ए एज इट इज. क्लियर? चलो अब आगे कैलकुलेशन यहां पे करते हैं. सो व्हाट वुड बी द फर्दर कैलकुलेशन हियर? ये प्लस ये माइनस, बाकी दोनों प्लस, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगी. सो इट विल बी माइनस साइन ए इंटू कॉस ए इंटू व्हाट यू गॉट इट साइन ए बाई 2 इंटू व्हाट यू गॉट इट कॉस ए बाई 2. साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 ऊपर बी पे आता है, माइनस थीटा 90 माइनस थीटा ऑलवेज बी अ फर्स्ट क्वाड्रेंट. अगेन रिपीट कर रहा हूं, पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव.
but pi by 2 पे function change, so sin will be converted to cos a by 2. Pi by 2 पे function change, so cos will be converted to sin a by 2. Positive ही होगा. Sin a as it is, cos a as it is. दोनों same term. ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो अल्टीमेट आंसर विल बी 0. Clear about this one? Is there any problem in this kind of question? इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन में अगर ट्रायंगल एबीसी आए तो क्या करना है, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इक्वल टू पाई का यूज करके आपको कैलकुलेट करना है. जहां पे भी दो एंगल का समेशन दिखे उसकी जगह क्या डाल दो, पाई माइनस थर्ड एंगल. उसकी जगह क्या डाल दो, पाई माइनस थर्ड एंगल. क्लियर? चलो लिख लो ये भी. ये लेक्चर यहां तक ही रखते हैं. फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर we will start the questions on the basis of the which one alpha plus beta, alpha minus beta की formula के बेस वाले questions करवाऊंगा. that we have seen in the what video number 3 में वो सारी formulas आपको बोला हुआ है कि learn करो. so learn करके रखो. next lecture में we will utilize of those formulas alpha plus beta, alpha minus beta की formula use करके उसके ऊपर वाले questions हम solve करेंगे.